Hello, good morning, students. So, yesterday we have seen how to draw traverse, right? How to draw traverse. Now, today we'll see how to calculate an angle, how to calculate angles. Okay, in interior angles. Okay, how to calculate interior angles. Okay, so we have traverse. We have four station. The stations for A, B, C, D. We have four station. Okay, so A, B, C, D, E, एंड अगेन ए. ओके, सो हमने कल इस तरह का ट्रावर्स ड्रॉ किया था. द ट्रावर्स वाज ए बी सी डी ई. ट्रावर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ऑल ऑफ यू नो. ओके, वी हैव टू ड्रॉ ट्रावर्स फ्रॉम दी फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग. आपकी बेरिंग कहाँ से, किस क्वाड्रेंट से निकल रही है और आपकी बेरिंग किस क्वाड्रेंट में एंड हो रही है. सो दैट इज, सो यू हैव टू ट्रावर्स, ड्रॉ ट्रावर्स फ्रॉम दी फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग. Okay, now let's we calculate interior and exterior, sorry, interior angles. Okay, so we have to find five angles: angle A, angle B, angle C, angle D, and angle E. Okay, so we have to find these five angles. We have to find these five angles: angle A, angle B, angle C, and angle D. Okay, तो हम लोगों को ये five angles calculate करने हैं, right? So now let's first angle calculate, that is angle A. Let's we calculate our first angle. So that is our angle A. Okay, तो angle A is equal to, एंगल ए कौन सी दो बेरिंग से बन रहा है. ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ ए बी एंड ए डी बेरिंग. ओके, सी आपकी आपको सॉरी, एंगल ए इज मेड अप ऑफ ए बी एंड ए ई बेरिंग. ओके, आपका जो ट्रावर्स है, ट्रावर्स के अंदर देखो कि आपका एंगल है कौन सी दो बेरिंग से बन रहा है. ओके, तो माय ट्रावर्स इज ए बी सी डी ई अगेन ए. ओके, सो आई वॉन्ट दिस एंगल ए. मुझे ये एंगल ए फाइंड करना है. ओके, तो एंगल ए कौन सी दो बेरिंग बना रही है. सो इट इज मेड अप ऑफ दिस टू बेरिंग्स. फर्स्ट वन इज ए बी एंड नेक्स्ट वन इज ए ई. ओके, ये दो बेरिंग है जिसकी वजह से मेरा एंगल ए बन रहा है. ओके, सो फ्रॉम ए, ओके, ए बी इज अ four bearing. Okay, while AE is a back bearing. Okay, यहाँ से अगर आप A से देखोगे तो AB is in a forward direction while AE is in a backward direction. Okay, so that is a there are two bearings. First bearing is four bearing of AB and back bearing of EA or AE. Okay, तो how to calculate angle. Angle हमें हमें हमेशा क्या करना है, we have to एंगल इज अ डिफरेंस ऑफ फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग. ओके, आपको क्या करना है, जो भी बड़ी बेरिंग है दोनों में से, हियर योर बैक बेरिंग इज लार्जर बिकॉज बैक बेरिंग ऑफ ई इज इक्वल टू 300 डिग्री 30 मिनट्स. आपका कल वाला टेबल देखो, बिकॉज यहाँ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक चीज यहाँ पे मैं शो कर सकूँ आपको. ओके, आप लोगों का कल वाला जो न्यूमेरिकल का टेबल है ना, टेबल फॉर फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग. ओके, सो जस्ट सी इन दैट टेबल व्हाट इज अ बैक बेरिंग ऑफ ई की बैक बेरिंग क्या है. The back bearing of EA, back bearing is equal to 300 degree 30 minutes. Okay, so this bearing is equal to 300 degree 30 minutes. And what is the four bearing of AB? Four bearing of AB is equal to four bearing is yes, that is equal to 150 degree 15 minutes. So angle A is a difference of four bearing and back bearing. Okay, so यहाँ पे angle A is equal to back bearing of EA minus four bearing of AB. Now what is the back bearing of EA? What is the back bearing of EA? Back bearing of EA is equal to 300 degree 30 minutes. So that is equal to 300 degree 30 minutes minus, what is the four bearing of AB? That is equal to 150 degree 15 minutes.
Okay, so that is equal to 150 degree 15 minutes. Okay, so that is equal to 150 degree 15 minutes. Okay, तो क्या आया मेरा एंगल ए? My angle A is equal to 150 degree 15 minutes. My angle A is equal to 150 degree 15 minutes. So my angle A is equal to 150 degree 15 minutes. Okay. Now calculate angle B. Okay, yes. ये एंगल आपका एक्सटीरियर होगा या इंटीरियर होगा? टेल मी. मैंने आपको अगले न्यूमेरिकल में मतलब बताया कैसे पता चलेगा कि आपका एंगल एक्सटीरियर है या इंटीरियर है. तो ये एंगल आपका एक्सटीरियर होगा या इंटीरियर होगा? टेल मी. ट्रावर्स आपका देखो और ट्रावर्स में देख के मुझे बताओ कि ये एंगल आपका एक्सटीरियर होगा. आपकी दोनों बेरिंग एक्सटीरियर बेरिंग है या इंटीरियर बेरिंग है? बताओ मुझे. टेल मी. टेल मी आपका एंगल. टेल मी इन चैट बॉक्स आपका एंगल एक्सटीरियर होगा इंटीरियर होगा और कैसे पता चलेगा? Exterior, yes, the angle is exterior because your bearings are exterior bearing. Okay, so how to convert exterior bearing into interior angle? एक्सटीरियर एंगल को हम इंटीरियर एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो दैट इज 360 माइनस एंगल. ओके, तो माय इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री 15 मिनट्स. ओके, 150 degree 15 minutes. Okay, so my angle is equal to, what is my interior angle? That is equal to 209 degree 45 minutes. Okay, तो ये मेरा एंगल आएगा 209 degree 209 degree 45 minutes. Okay, that is my angle A. Now calculate angle B by yourself. Okay, angle B आप खुद से calculate करके मुझे बताओ कि what is the value of angle B. Again, एंगल बी कौन सी दो बेरिंग बना रही है? एक तो बी ए एंड बी सी. ओके, तो एक फोर बेरिंग होगी एक बैक बेरिंग होगी. ओके, तो दोनों का डिफरेंस दैट इज इक्वल टू एंगल बी. नाउ कैलकुलेट एंगल बी. चलो मुझे एंगल बी कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में बताओ कि मुझे एंगल बी कितना आ रहा है. ओके, कैलकुलेट एंगल बी. ओके, एंगल बी इज इक्वल टू, no, angle B is equal to 309 degree 45 minutes. Okay, no, angle B is an interior angle. It is not an exterior angle. Sorry, हाँ, it is also an exterior angle. Yes.
Hello, audible now? Hello, am I audible now? Okay, okay. Rinkesh, what you want to ask? I'm not getting you actually. What is your question? हमें सब्ट्रैक्ट करना है because we have to subtract our angle from 360 because we want to find interior angle. Okay, traverse हमेशा interior angle बनाते हैं ना. These are interior angles. These four angles are interior angle. But यहाँ पे कुछ एंगल हमें क्या मिलते हैं? एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये बाहर वाला एंगल मिलता है. तो अब एक्सटीरियर एंगल को मुझे इंटीरियर एंगल में कन्वर्ट करना है. तो हाउ टू कन्वर्ट? मैं क्या करूंगी? 360 के अंदर से मेरा एक्सटीरियर एंगल माइनस कर दूंगी. देन आई विल गेट एन इंटीरियर एंगल, राइट? तो यहाँ पे जो मुझे अगर मेरा इफ माई एंगल इज ग्रेटर देन 180, अगर मेरा कोई एंगल 180 से बड़ा है, तो दैट्स मीन व्हाट? दैट इज एन एक्सटीरियर एंगल एंड आई हैव टू कन्वर्ट दैट एंगल इनटू एन इंटीरियर एंगल, राइट? सो यहाँ पे मेरा एंगल ए, फॉर एंगल ए माई एंगल इज for angle B, my angle is 309 डिग्री 45 मिनट्स. ओके, तो ये मेरा क्या हुआ? इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल हुआ. अब मुझे उसको इंटीरियर में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस दैट एंगल फ्रॉम द 360 डिग्री. देन आई विल गेट एन इंटीरियर एंगल, राइट? व्हाट मिनट्स? आप लोग ना कैलकुलेटर में, रिंकेश, यूज कैलकुलेटर्स. ये ऐसे मत कैलकुलेट करो. आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में डिग्री मिनट है, वहां पे डॉट दिया हुआ है और कॉमा दिया हुआ है, वो आपका सिंबल है फॉर डिग्री एंड मिनट्स. ऐसे ही सब्ट्रैक्ट मत कर तू. ओके, डायरेक्ट कैलकुलेटर में सब्ट्रैक्ट कर, तो यू विल गेट दिस आंसर. जो इंजीनियरिंग कैलकुलेटर है ना आपके पास, उसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन करो. कैलकुलेटर में ऐसा सिंबल होगा, एक ऐसी की होगी, उसके ऊपर ये डिग्री, मिनट और सेकंड ऐसा सिंबल होगा. तो सपोज आप लोग 309 कर रहे हो, उसके बाद आप एक बार ये की प्रेस करो. उसके बाद आप अगर 15 मिनट लिखना है, तो आप सेकंड टाइम ये की प्रेस करो. तो आपका आंसर डिग्री मिनट में डायरेक्ट कैलकुलेटर आपको देगा. इट इज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर. ओके, इट इज एन इंजीनियरिंग कैलकुलेटर. वो आपको डायरेक्ट डिग्री मिनट में आंसर देगा. खुद से कैलकुलेट मत करो. डायरेक्टली कैलकुलेटर, डायरेक्टली कैलकुलेट ऑन कैलकुलेटर. निधि आहिर, व्हाट हैपेंड? ओके, सो डायरेक्टली कैलकुलेट ऑन कैलकुलेटर. रिंकेश, आपके कैलकुलेटर में ये वाला सिंबल होगा. देखो, एक डॉट होगा, फिर एक कॉमा होगा और फिर डबल कॉमा होगा. तो आप लोगों को डिग्री, द डॉट इज फॉर डिग्री, वन सिंगल कॉमा इज फॉर मिनट एंड डबल कॉमा इज फॉर सेकेंड. तो आप अगर आपको डिग्री लिखना है, तो 360 लिखने के बाद वो की को एक बार प्रेस करो. अगर आपको मिनट लिखना है, तो 15 मिनट के बाद की को सेकेंड टाइम प्रेस करो. अगर आपके पास सेकेंड भी है, तो आपको उस की को थर्ड टाइम प्रेस करनी है. ओके, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा कैलकुलेटर में. नाउ कैलकुलेट एंगल सी. कैलकुलेट एंगल सी.
कैलकुलेट एंगल सी, कैलकुलेट एंगल सी डी एंड ई, तीनों तीन एंगल्स फाइंड कर लो, सी डी और ई, और मुझे पांचों एंगल का समेशन बताओ। Yes, angle C is equal to 95 degree 15 minutes. Right. Okay, so calculate angle C, D and E. Calculate all of the three angles. Yes, angle D is 102 degree 15 minutes and angle E is equal to 82 degree 30 minutes. Right. Okay. So angle C is equal to 95 degree 15 minutes. Angle D is equal to 102 degree 15 minutes. Angle E is equal to 82 degree 13 minutes. So we have all the five angles. Now what is a check?
How to check? The sum of interior angles should be equal to 2n minus 4 into 90. Okay, so check sum of interior angles. What is a check? Sum of interior angles is equal to 2n minus 4 into 90, where n is equal to number of survey lines. Okay, कितनी lines है हमारी? We have 5 lines. Okay, so 2n minus 4 into 90 is equal to 2n 2 multiplied by 4, 5, and n is equal to numbers of survey lines. Okay, so 2, 5 minus 4 into 90 is equal to होगा आपका 540. 540. ओके, आपके सभी एंगल का सम, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, उसका समेशन करके देखो कितना आ रहा है. इट मस्ट बी इक्वल टू 540, देन योर न्यूमेरिकल इज ओके. अगर नहीं आ रहा है, कोई मिस्टेक है, कोई एरर है, आपको फिर से न्यूमेरिकल करना होगा. ओके, your angle must be, your summation of all angle must be equal to 2n minus 4 into 90. Okay, where n is equal to number of lines, number of survey lines. Okay, तो आप पांचों एंगल का समेशन करो, कितना आ रहा है? इट मस्ट बी इक्वल टू दिस, इतना ही होना चाहिए. देन योर न्यूमेरिकल इज ओके. हेलो, ऑडिबल? ओके, यस, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू ओके, अगर ये दोनों आपका 540 आते हैं, 2n minus 4 into 90 is equal to sum of all angle, then your numerical is okay. अगर ये दोनों सेम आता है, then your numerical is okay, right? Okay, done. Now theory. यहाँ तक अभी हमारा एंगल का न्यूमेरिकल्स खत्म हुए, और दूसरे हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे फॉर लोकल अट्रैक्शन. ओके, लेट्स गो फॉर द थियोरी.
छोटा सा टॉपिक है लोकल अट्रैक्शन। ओके, तो व्हाट इज लोकल अट्रैक्शंस? वी नो हाउ टू मेजर एन एंगल। ओके, हम एंगल कैसे मेजर करते हैं? विद द यूज ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। ओके, प्रिज्मेटिक कंपास में जो नीडल होती है, वो नीडल क्या होती है? इट इज मेड अप ऑफ मैग्नेट, दैट्स व्हाई दैट नीडल इज नोन एज अ मैग्नेटिक नीडल। ओके, वो हमें क्या शो करती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करती है। ओके, विल शो यू अ प्रिज्मेटिक कंपास। मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज अ प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास शायद हमने देखा था यहाँ पे। Yes, here it is a prismatic compass, right? So यहाँ पे this is a prismatic compass। यहाँ से आपको देखना है और यहाँ से आपको यहाँ आप देखोगे ना, तो ये डायल गेज पे आपको रीडिंग मिलेगी। अब यहाँ तो मैं आपको कैसे हाउ टू एक्सप्लेन दैट, आई रियली डोंट नो। बिकॉज आप जब देखोगे ऑन फील्ड, तभी आपको एक्चुअली समझ आएगा कि कंपास से रीडिंग कैसे लेते हैं। ओके, यहाँ पे होता है प्रिज्म। दैट्स व्हाई दिस कंपास इज नोन एज अ प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्म क्या करता है? सन रेज को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, दैट इज अ यूज ऑफ दिस प्रिज्म। तो यहाँ से आपको बाइसेक्ट करना है। यहाँ पे होगा एकदम पतला सा हेयर होगा। वो हेयर से आपको जिस ऑब्जेक्ट का एंगल मेजर करना है, उस एंगल को उस ऑब्जेक्ट को आपको बाइसेक्ट करना है, देखना है। ओके, यहाँ पे आपकी आएगी आई साइट। ओके, यहाँ से आपको आंख से देखना है, तो इस डायल गेज पे आपको रीडिंग मिलेगा। सो दैट विल बी योर बेरिंग, वो आपकी होगी बेरिंग। सो दिस इज अ प्रिज्मेटिक कंपास। दिस कंपास इज नोन एज अ प्रिज्मेटिक कंपास। इसमें ये जो नीडल है ना, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल्स ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हमें नॉर्थ डायरेक्शन शो करती है। ओके, तो ये मैग्नेटिक नीडल्स हमें नॉर्थ और साउथ दो डायरेक्शन शो करेगी। सो दिस इज अ प्रिज्मेटिक कंपास। नाउ व्हाट इज लोकल अट्रैक्शन? What is local attraction? North end of the freely suspended magnetic needle will always point towards the magnetic north. That all of we know. अगर आप कंपास लो, हुक का यंत्र आपने लिए, ओके, तो वो भी क्या करेगा? हम लोगों को ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगा। जस्ट लाइक दिस इज अ engineering compass, or this is a prismatic compass, so it also shows north and south direction. Okay, the north end of the freely suspended magnetic needle will always points towards the magnetic north. If it is not influenced by any other external forces except the earth magnetic field, अगर उसको और कोई मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट ना करे। सपोज आपकी मैग्नेटिक नीडल है, मतलब आपका प्रिज्मेटिक कंपास है, उसके पास अगर हैमर पड़ी है, रेंजिंग रोड है, वो क्या बनेंगे? वो किससे बने हैं? आयन से बने हुए। तो वो क्या करेंगे? आपकी मैग्नेटिक नीडल को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, अट्रैक्ट करेंगे, तो उससे आपको एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिलता। सपोज आपका जो आप जहां पे सर्वे कर रहे हो, वहां से पास में अगर रेलवे लाइन पास हो रही है, तो आपकी मैग्नेटिक नीडल क्या होगी? टुवर्ड्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी अट्रैक्ट। ओके, उस तरफ वो अट्रैक्ट होगी, तो जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिलते। ओके, सो it is common experience that the magnetic needles gets deflected from its normal position। वो होता है बिकॉज बिकॉज हमारी सर्वे जहाँ पे करते हैं, वहाँ आसपास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, तो जिसकी वजह से हमारी निडल वहाँ पे अट्रैक्ट हो सकती है। इफ प्लेस नियर मैग्नेटिक रॉक्स, आयरन ओरी, केबल्स कैरिंग केबल्स कैरिंग करेंट्स ऑफ आयन इलेक्ट्रिक पोल्स। ओके, अगर ऐसे कुछ भी हो, तो हमारे निडल क्या होगी? वहां उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। देयरफॉर नॉट रिलायबल अनलेस दिस आर चेक्ड अगेंस्ट द प्रेजेंस ऑफ द लोकल अट्रैक्शन एट ईच स्टेशन एंड देयर एलिमिनेशन। तो इसी वजह से क्या होगा कि हमें चेक करना है, हर एक स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन चेक करना है। कि सपोज हमारे पास 4 स्टेशन है, ए बी सी डी, तो हमें चेक करना है कि हमारा किसी स्टेशन पे हमारी मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट तो नहीं हो रही, डिफ्लेक्ट तो नहीं हो रही। अगर डिफ्लेक्ट हो रही है, तो दैट मीन्स क्या कि उस स्टेशन का रीडिंग हमें रॉन्ग मिल रहा है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू चेक आवर रीडिंग एट
ईच एंड एवरी स्टेशन, हमें हमारे रीडिंग को हर एक स्टेशन पे चेक करना है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज लोकल अट्रैक्शन. लोकल अट्रैक्शन क्या होता है? डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. अगर कहीं कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है और उसकी वजह से हमें एग्जिट रीडिंग नहीं मिल रहे, तो दैट्स कॉल्ड द लोकल अट्रैक्शन. Okay, so deflection of local attraction, the presence of local attraction, that's called local attraction. Okay, कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारी नीडल को अट्रैक्ट करती है उसकी तरफ, तो इट इज कॉल्ड द लोकल अट्रैक्शन. द प्रेजेंस ऑफ लोकल अट्रैक्शन एट एनी स्टेशन ए बी सी डी. सपोज हर एक स्टेशन पे नहीं है, सिर्फ हमारा डी स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब हमें एग्जिट रीडिंग नहीं मिल रहा है, तो प्रेजेंस ऑफ लोकल अट्रैक्शन एट एनी स्टेशन may be deflected by observing the fore and back bearing of the line. तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा लोकल अट्रैक्शन हो रहा है? ओके, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रीडिंग रॉन्ग आ रहा है? तो हमें क्या करना है, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का हमें जो डिफरेंस है वो लेना है हर एक स्टेशन पे. एट ईच एंड एवरी स्टेशन वी हैव टू टेक अ डिफरेंस ऑफ फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग. ओके, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस कितना आना चाहिए? दैट आई टोल्ड यू लेटर अर्लियर. ओके, इट मस्ट बी इज इक्वल टू 180. क्यों 180 आता है वो भी मैंने आपको बताया था. क्यों हमारी फोर और बैक बेरिंग का डिफरेंस हमेशा 180 होता है? दैट आई टोल्ड यू यस्टरडे. ओके, क्योंकि सपोज दिस इज योर ए बी लाइन. ओके, तो A to B is my four bearing while BA is my back bearing for A point. Okay, तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ओके, इट इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है? इट इज इक्वल टू 180. दैट्स व्हाई हमारी फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस ऑलवेज 180 आना चाहिए. इफ इट इज लेसर और ग्रेटर देन 180, दैट मीन्स व्हाट, कि लोकल अट्रैक्शन इज प्रेजेंट. ओके, इफ इट इज लेसर और ग्रेटर देन 180, दैट मीन्स कि लोकल अट्रैक्शन इज प्रेजेंट. ओके, अगर आपका डिफरेंस 180 से ज्यादा आ रहा है, 180 से कम आ रहा है, दैट मीन्स के लोकल अट्रैक्शन वहां पे लग रहा है. ओके, इन केस द फोर एंड बैक बेरिंग ऑफ द neither line of traverse difference by the permissible error of reading the mean value of the bearing of the line least affected by the accepted. मतलब क्या है? मतलब अगर परमिशियल मतलब अगर आपकी 1 डिग्री है, थोड़ा बहुत है, दैट मीन्स के बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, सो इट इज परमिशिएबल. ओके, अगर बहुत ज्यादा अगर 180 की जगह 180 डिग्री 30 मिनट्स आ रहा है, इफ योर डिफरेंस इज 180 डिग्री 30 मिनट्स और योर डिफरेंस इज 179 डिग्री 30 मिनट्स, देन इट इज परमिशिएबल. ओके, इतना डिफरेंस चलता है, दैट इज ओके. ओके, द करेक्शंस टू अदर स्टेशंस मे बी मेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मेथड. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक स्टेशन के लिए फिर हमें हमारी बेरिंग को करेक्ट करनी होगी ना. नाउ हाउ टू करेक्ट बेरिंग, दैट वी विल सी in our next lecture. Okay, because वो बहुत बड़ा numerical है. Okay, तो we will see in our next lecture how to correct the bearings. Okay, by calculating the included angles at the affected station by checking the required correction starting from the unaffected bearings. मतलब there are two kind of the correction, एक तो angle थ्रू, दूसरा है बेरिंग थ्रू. और इसे कैसे करेक्ट करते हैं वो हमारा एक पूरा एक न्यूमेरिकल है, एंड दैट न्यूमेरिकल we will see in our next lecture. So this is local attraction. Okay, this is local attraction. Again, what is local attraction? आपकी मैग्नेटिक नीडल किससे बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ मैग्नेट. ओके, तो वो क्या करेगी, आयन अगर जहां पे होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी. तो अगर हमारे सर्विस स्टेशन के आसपास कोई बहुत ज्यादा आयन है, मतलब कोई हैमर पड़ी हुई है, कोई रेंजिंग रोड है, कोई रेलवे लाइन जा रही है, कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल है जो आयन से बना हुआ है, तो वो क्या करेगी, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी. तो हमें जो एग्जैक्ट रीडिंग मिलना चाहिए वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिल रहा है. मतलब हमारी फोर बेरिंग बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 एग्जैक्ट होना चाहिए, तो वो नहीं होगा, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा. तो हमें क्या करना होगा, हमारे उस रीडिंग को हमें करेक्ट करना होगा, उसके लिए हमें करेक्शन करना होगा. ओके, सो दैट इज कॉल्ड लोकल अट्रैक्शन. तो यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन का सिर्फ करेक्शन बाकी रहा है. उसके बाद वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज लेवलिंग. ओके, लेवलिंग इज अ न्यू टॉपिक. ओके, बट उसके पहले हम लोकल अट्रैक्शन के लिए करेक्शन वाला न्यूमेरिकल देखेंगे, और उसके लिए मैं आप लोगों का कल एक्स्ट्रा लेक्चर ले रही हूँ एट 10 AM. ओके, मैं आई विल मैसेज यू इन ग्रुप
कि कल मैं आपका लेक्चर एक्चुअली कितने बजे रख रही हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली तो 10 AM होगा। ओके, तो आपका कल एक्स्ट्रा लेक्चर है कल। एक्स्ट्रा लेक्चर एक्चुअली नहीं है, बिकॉज के जो हमारा थर्सडे वाला लेक्चर था ना, वो जो मैं नहीं ले पाई थी, बस वही मैंने रीशेड्यूल किया है कल के लिए। ओके, थैंक यू। अभी लीव मत हो ना, आई हैव टू टेक अटेंडेंस। ओके, यू मे लीव नाउ, थैंक यू।